Everybody can Yeah. see, right? Yes. Okay. Okay. So if you want, we can start, and that way, yeah, I don't want to take too much of everybody's time. I feel like the shorter things are, the more concise things are, the better. So we'll get into it right away. So I'll allow time for translation and things like that. But Okay. we're going to talk about prospecting. This is one of my favorite parts of the business. This is pretty much the entire business is built around prospecting. Absolutely. So, just give let me allow me to give a brief about this particular topic again. Can you hear me? Okay. Yeah, I hear you. ओके 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 सो या हाय एवरीवन। आज का जो सेशन रहेगा माइकल के साथ वो रहेगा प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर। सो माइकल बता रहे हैं कि प्रोस्पेक्टिंग का जो सेशन है वो उनका फेवरेट सेशन है। और आज मेजरली हम बात करेंगे कि हम जब हम अपनी टीम बिल्डिंग का प्रोसेस फॉलो करते हैं, जब हम अपने अपनी बिजनेस को बिल्ड करते हैं, तो प्रोस्पेक्टिंग कितना बड़ा रोल प्ले करता है उसके ऊपर आज हम मेजरली बात करने वाले हैं। ओके माइक। Awesome. Excellent. Excellent. So, we always talk about the mindset. We'll go over it really quick, right? So, with the thing about prospecting is, I think that, as you're building your business, um, I don't think people do prospecting enough. I don't think people see how important it is. I think people kind of come into this business with the mentality of, I know this many people. The crazy thing is that I built my business off of people that I didn't know when I first started. It was people that I met after I joined. करेक्ट। सो फर्स्ट पॉइंट जो है हम डिस्कस कर रहे हैं वो है माइंडसेट का। और माइंडसेट में माइक बता रहे हैं कि लोगों का एक माइंडसेट होता है कि हमारे पास इतने लोग हैं जितने लोगों को हम जानते हैं, एक सेट ऑफ पीपल जिन्हें हम जानते हैं, और हम उनके साथ ही अपने बिजनेस को बिल्ड करेंगे। बट माइकल अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात थी, बहुत बोल सकते हैं कि बहुत डिफरेंट बात ये थी कि मेरा जो पूरा टीम था या पूरा स्ट्रक्चर था वो बना ही उन लोगों से जिनको मैं कभी जानता नहीं था और जिनसे मैं मिला जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था, युसाना बिजनेस की शुरुआत करी थी, उसके बाद जिनसे मैं मिला वो लोग आज मेरे बिजनेस में है मेजोरिटी। सो ये है प्रोस्पेक्टिंग का एक Mhm. माइंडसेट, एक वी कैन से टैबू मेजरली, that I know this many people and I know this many people will join and this won't join, but eventually you meet a lot of people on the way and then you build your team like that. Exactly. Exactly. So it's the people that I met after. So that means that I was prospecting because I was meeting new people during my career in USANA. So the mindset for me has always been prospecting is not convincing. I think sometimes people think like I'm trying to convince you to do something. That's not the case. Okay. Consistency beats intensity. So people think you have to be very energetic and very, woo, right? Like, no, it's being consistent is more effective. And then exposure changes lives. I think about what we're doing is really exposing people to a new idea or exposing people to a good product, exposing people to a new way of thinking or a concept. That's the goal, right? You're just exposing. That's the mindset, right? And then the goal is conversation, not pressure, right? You're trying to have conversations with people. This is the mindset when I'm prospecting. It's really it all is summed up right here on this one slide. एब्सोल्युटली। सो व्हेन वी टॉक अबाउट माइंडसेट, जब हम माइंडसेट की बात कर रहे हैं तो लोगों को लगता है कि प्रोस्पेक्टिंग जो है वो कन्विंस करना होता है, जबकि प्रोस्पेक्टिंग का एक्चुअल मतलब है कि आप नए लोगों से मिलते हैं, नए लोगों से मिलना, दैट इज प्रोस्पेक्टिंग, इसे प्रोस्पेक्टिंग बोला जाता है। सो सबसे पहली बात जो हमारे माइंड में एक प्री सेट नोशन है, दैट इज प्रोस्पेक्टिंग मतलब कन्विंस करना लोगों को। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, प्रोस्पेक्टिंग कन्विंस करना नहीं होता है। दूसरा, आपकी कंसिस्टेंसी जो रहेगी वो आपके इंटेंसिटी को बीट करेगी। हो सकता है आपके साथ कोई और इंडिविजुअल हो या आपको लगता हो कि आपको ज्यादा एनर्जेटिक होना चाहिए, आपको ज्यादा फास्ट पेस्ड इंटेंसिटी से काम करना चाहिए, तभी आप इस बिजनेस में सक्सीड हो पाएंगे या प्रोस्पेक्टिंग अच्छी हो पाएगी आपकी। बट ऐसा नहीं है, आपकी कंसिस्टेंसी, अगर आप रेगुलरली कंसिस्टेंट है अपने वर्क शेड्यूल में, अपनी प्रोस्पेक्टिंग में, तो आपको वहां से ज्यादा रिजल्ट्स मिलने के चांसेस है। थर्ड इज एक्सपोजर चेंजेस लाइफ्स। जब आपको एक्सपोजर मिलता है तो माइक, कैन यू रिपीट दिस पॉइंट अगेन? आई मिस्ड इट, सॉरी। Yeah, it's exposing people to a new idea, exposing people to a product, exposing people to a new way of thinking, a ओके। perspective, right? It's just a constant exposure. That's all it is. Like
if you think about what social media does, or what influencers or newspapers or television programs, it's exposing you to something new, right? And if you're exposed to it enough times, it could influence you, it could impact you, right? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली सो द थर्ड पॉइंट इज प्रोस्पेक्टिंग का बोल सकते हैं एक तरीके से प्रोस्पेक्टिंग का ये भी मतलब है कि आप किसी को एक्सपोजर दे रहे हैं और एक्सपोजर उनको इन्फ्लुएंस कर सकता है और उनकी लाइफ को चेंज कर सकता है। एक्सपोजर किस चीज का हो सकता है? एक्सपोजर अपॉर्चुनिटी का हो सकता है, प्रोडक्ट्स का हो सकता है, एक लाइफस्टाइल का हो सकता है, या एक फ्रीडम का हो सकता है, जो भी उनका वाई हो या जो भी आपका वाई हो। जैसे एग्जाम्पल दिया माइक ने कि अगर हम किसी इन्फ्लुएंसर को फॉलो करते हैं या सोशल मीडिया पे कोई इन्फ्लुएंसर्स है, न्यूज रिपोर्टर्स हैं, तो अगर वो बहुत लंबे समय तक हमें एक ही चीज बार बार दिखा रहे हैं तो हम कई बार इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। सो वो हमें एक्सपोजर दे रहे हैं उन चीजों का जिनसे हम इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। इसी सेम प्रोसेस को हम प्रोस्पेक्टिंग भी बोल सकते हैं कि आप किसी को एक्सपोजर दे रहे हो जिससे उनकी लाइफ चेंज हो सकती है, चाहे वो प्रोडक्ट्स को लेकर हो, चाहे वो अपॉर्चुनिटी को लेकर हो। एंड द फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट दैट इज कि जो गोल है वो कॉन्वर्सेशन करना है, ना कि प्रेशर करना है। आप किसी को प्रेशर नहीं कर रहे हैं कि आप मेरे साथ काम करिए, आप जुड़े, आप शुरुआत करें, आप प्रोडक्ट्स को ट्राई करें। आप लोगों के साथ एक कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं और यही आपका इवेंचुअली गोल होना चाहिए कि आपकी कॉन्वर्सेशन हो किसी के साथ, ताकि आप उन्हें अपने आइडिया को पिच कर सकें। सो दिस इज द माइंडसेट दैट वी शुड फोकस ऑन। ये माइंडसेट है जिसके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। ओके। Exactly. So that's the way of thinking. And I always start with the mindset, right? Because it's your state. You know what I mean? When you're thinking about something and you're in that mindset, like it should come more natural, right? You shouldn't be so structured. It should come natural. Okay. So why do people avoid prospecting? I think ultimately it's the fear of rejection, right? There's the fear of sounding salesy, a lack of belief, or it's just overthinking. You're overthinking it too much. You're trying to decide for the other person, right? You're trying to decide if they're going to do it, if they're going to do well, if they're going to succeed, if they're going to fail, who are they going to talk to? Like you're thinking too much. That's not part of this, okay? Your job is not to determine the outcome of everybody's life. Your job is just to, what I said, to expose people to the ideas. So, एब्सोल्युटली करेक्ट। सो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पहले अवॉइडेंस की। तो हम क्यों अवॉइड करते हैं प्रोस्पेक्टिंग करना, या जनरली लोग क्यों अवॉइड करते हैं इस प्रोसेस को? सबसे पहला पॉइंट हो सकता है कि आपको डर लगता हो कि आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, जो फियर ऑफ रिजेक्शन होता है लोगों से कि लोग मुझे मना कर देंगे। इसके कारण भी कई बार लोग प्रोस्पेक्टिंग नहीं करते हैं। आपको आइडेंटिफाई करना है आपका रीजन क्या है और आपको उसे ओवरकम करना है बेसिकली। ठीक है, पहला पॉइंट है कि फेयर ऑफ रिजेक्शन होता है। दूसरा होता है कि आपको लगता होगा कि मैं सेल्स ही साउंड कर रहा हूँ, या हम अगर किसी को बता रहे हैं तो हम उसे ऐसा ना लगे कि हम बेच रहे हैं। ये एक पॉइंट हो सकता है। तीसरा, लैक ऑफ बिलीफ। आपको बिलीफ कम हो सकता है अपने ऊपर या अपने प्रोजेक्ट के ऊपर। दैट कैन बी अ चांस। ये चांस हो सकता है कि इसीलिए आप प्रोस्पेक्टिंग नहीं कर रहे हैं, आप अवॉइड कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है आप उतने कॉन्फिडेंट नहीं हो अपने आप को लेकर के या फिर अपने प्रोजेक्ट को लेकर के। एट लास्ट, ओवर थिंक है। आप बस सोच रहे हैं और आप डिसाइड कर रहे हैं दूसरे पर्सन के लिए, आगे वाला क्या बोलेगा नहीं बोलेगा ये आप अपने माइंड में ऑलरेडी डिसाइड कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं अपने माइंड से। आप ओवर थिंक कर रहे हैं चीजों को कि क्या होगा, कैसे होगा, उसने ना बोल दिया तो, जो भी हमारे दिमाग में ओवर थिंकिंग आती है। ये सारे XYZ रीजंस होते हैं जिसके कारण, जिसे हम लेकर के अवॉइड, यूजुअली अवॉइड करते हैं प्रोस्पेक्टिंग प्रोसेस को, बट हमें इवेंचुअली इन्हें ओवरकम करना होगा ताकि हम अपने बिजनेस को स्मूथली और अच्छे तरीके से बिल्ड कर सकें। Yeah, we can move forward. okay, excellent, excellent. So moving on. So the core philosophy is right, is you have to understand like if you feel this at your core, you're gonna do it more naturally. You're gonna feel the need to go do it, which is this. What we have is valuable. If that's a core philosophy for you, it's gonna be natural. You're gonna want to talk about it all the time. I think about like, traveling, right? I talk about it a lot. It's not because that's my job, but it's because it's a core value. I believe everybody needs it, right? So people need health and income solutions. When it comes to what we do here at USANA, like I believe that we have solutions for health and for income. We have that solution. And because we have it, I want to share it because a lot of people have those two concerns in their life. A lot of concerns revolve around health and income. And then the last thing is the quality.
right? If you have quality interactions, quality conversations, it's going to lead to quantity. You're going to have more conversations because now people want to talk to you. Like when you talk and it's very interesting, you're providing solutions, you talk about the value that you have. Now people call you. Hey, what are you up to? Tell me about, it's like you have good interactions with people. I think that's important. एब्सोल्युटली। सो थर्ड पॉइंट है कोर फिलोसफी। एक अच्छा बिजनेस बिल्ड करने से पहले ये चीज़ आपको नेचुरली आनी चाहिए। मतलब आपका खुद का माइंडसेट, अगर आपकी खुद की फिलोसफी सेट है, तभी आप आगे उसके ऊपर बहुत अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ हमें फोकस करना होगा कि आज जब आपके मन में खुद से आ रहा है, आपको खुद से इंटरनली ये चीज़ महसूस हो रही है कि जो आपके पास है वो बहुत वैल्यूएबल है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब भी आप उसे किसी को शेयर करेंगे उसकी मदद हो सकती है, उसे अच्छा, बेसिकली उसे अच्छी बेटर लाइफ मिल सकती है, बेटर लाइफस्टाइल मिल सकती है, बेटर हेल्थ मिल सकती है, बेटर इनकम अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। आपको पता है कि आपकी चीज कीमती है, वो वैल्यूएबल है, और वो आगे वाले की लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट ला सकती है। तो जब आपके माइंड में, आपकी कोर फिलोसफी में ये सेट है, तो आपको अवॉइडेंस नहीं होगा, आप प्रोस्पेक्टिंग अवॉइड नहीं करेंगे, कभी भी आप लोगों से बात करना अवॉइड नहीं करेंगे। दूसरी चीज, आपको पता है कि लोगों को हेल्थ की और इनकम सॉल्यूशंस की ज़रूरत है, एंड अगर आप कॉन्फिडेंट है कि आपके पास जो प्रोजेक्ट है वो इन दोनों सॉल्यूशंस को प्रोवाइड कर सकता है, तो अगेन आपकी ये कोर फिलोसफी में फिट होगा, तो आपके माइंड में ये चीज़ रहेगी कि आप अपने प्रोजेक्ट को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एंड एट लास्ट, क्वालिटी लीड्स टू क्वांटिटी। मतलब ये है कि अगर आप लोगों के साथ एक वैल्यूएबल कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं, एक प्रॉपर कॉन्वर्जेशन हो रही है जहाँ पे जो कि क्वालिटी है, बेसिकली अच्छी कॉन्वर्जेशन आप लोगों के साथ बिल्ड करें, आप लोगों को सोल्यूशंस दे पा रहे हैं, लोग आपकी चीजें, आपकी बातें सुनना पसंद करेंगे, वो आपके पास और सोल्यूशंस के लिए आना चाहेंगे, और वो डेफिनेटली वहां पे आपकी जो टीम में क्वांटिटी भी आनी स्टार्ट होगी जब आप क्वालिटी कॉन्वर्जेशंस करना स्टार्ट करेंगे लोगों के साथ। सो ये कोर फिलोसफी है जो हमें बिल्ड करनी है, हमें अपना माइंड सेट इस तरीके से शेप करना है कि हमें ये तीन चीजों के ऊपर जरूर फोकस करना है। So, Mike, I would like to just share one of my experience. So, when you talked about For sure. what we have as a valuable, so I'll just tell you a recent basically a challenge happened with me in my family. So I trust my products. I trust Usana products absolutely a lot, and I know my products are like really valuable. So my father is in basically OT. He got a surgery yesterday, and I was pretty sure that my products are going to help him. So what I did was, when I was admitting him to the hospital, I took one of our products, proflavanol and coconut, and when he was drinking water, I silently took that pill and put it in his mouth. So I wanted to take it. I, I bluffed him. And not just one time, I bluffed him today itself. So again, I gave him proflavanol, I gave him coconut, because I know these products are going to help in his recovery. So Yeah. that's how I know my products are valuable, and that's what I want my father to consume and make his health a better. I just want him to recover fast. That's it. So Yeah, I know no, my for sure, products for are sure. good. Yeah, Yeah. no, for sure. I mean, I can relate 100%. Like what we have is valuable. I think some people say, I know what we have is valuable, but then why don't you share it with everyone? All right. If then Absolutely. maybe you don't think it's that valuable. Does that make sense? Yes. Because if it's truly valuable, you're going to share with everyone, especially family, right? Um, when my mom was sick, like I already knew it was valuable, but my mom was taking the products every single day, and yeah, I do believe that it made the difference for her. So, but yeah, I'm glad your dad is taking the products. Okay, we'll move on. Okay. So where do you find the prospects, right? Like, where do you find them? I like to think that I'm a pretty social person. I do. But keep in mind, I only have 24 hours in a day, just like everybody else. So there's not a lot of time to go and intentionally meet people. Like, it doesn't work like that. You have to kind of just make it part of your day-to-day life. So you have your warm market. Your warm market are basically your friends, people in your circle. You have social media, of course, everybody that you follow. A lot of the people that follow me on social media are people that are already a part of USANA. So it's not like I have thousands of friends. It's just they're mostly USANA people, right? And then events and networking. I do go to a lot of events, and it could be anything. It could be a cooking class, it could be a sporting event.
It could be a baseball game. It could be anything. I've met a lot of people through that. And then daily lifestyle interactions. You go to the grocery store, you go to the bank, you go to get your car serviced, you go to the mall, you go shopping. Those daily interactions, you're going to have opportunities to have conversations. It's not like you're telling them about the business right there or telling them about the product there. It's about building the relationships. That's the key first. ट्रू, एब्सोल्युटली। सो ना अब हम बात कर रहे हैं कि हम अपने प्रोस्पेक्ट्स को एग्जैक्टली कहाँ ढूंढ सकते हैं। सो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो माइक हमें शेयर करा है, आई एम श्योर हमने ये ज़रूर ट्राई भी किए होंगे, बट वी जस्ट हैव टू ट्राई हार्डर, हमें और ज़्यादा ट्राई करना होगा। दैट्स द की, दैट्स द सोल्यूशन। सो सबसे पहला है वार्म मार्केट। हमारा जो वार्म मार्केट है, हम हमारे फ्रेंड्स हो सकते हैं, हमारे फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, वो लोग जिनसे हम बहुत ज्यादा टच में नहीं रहते हैं, बट अगेन वहां पे एक रैपो बिल्ड होती है, लोग हमें जानते हैं, तो वहां से हमें एक अच्छा फीडबैक मिल सकता है, अच्छा रिस्पॉन्स मिल सकता है। इसके अलावा सोशल मीडिया, बहुत सारे लोग हैं जो आपको सोशल मीडिया पे फॉलो करते होंगे, बहुत सारे लोग होंगे जिनको आप सोशल मीडिया पे फॉलो करते होंगे। आप उन्हें रीच आउट कर सकते हैं, आप उन्हें प्रोस्पेक्ट कर सकते हैं, और आप और लोगों के साथ अपनी फॉलोइंग फॉलोअर लिस्ट बिल्ड कर सकते हैं, जिससे लेटर आप उन्हें पिच कर सकते हैं, अपने प्रोजेक्ट के बारे में बता सकते हैं। थर्ड, इवेंट्स एंड नेटवर्किंग। आप अपने आपके आसपास में, आपके एरिया में जो इवेंट्स हो रहे होंगे, नेटवर्किंग इवेंट्स हो रहे होंगे, तो आप वहां जा सकते हैं। जो आपको, जैसे हम हेल्थ एंड फिटनेस सेक्शन में है, तो अगर आपको लगता है कि हेल्थ और फिटनेस में कोई इवेंट हो रहा है, तो आप वहां जा सकते हैं, वहां लोगों के साथ नेटवर्किंग बिल्ड कर सकते हैं, और फिर आप उन्हें लेटर प्रोस्पेक्ट बना सकते हैं, उन्हें प्रोस्पेक्ट कर सकते हैं। एंड एट लास्ट, डेली लाइफस्टाइल इंटरेक्शन। आपकी जो डेली लाइफस्टाइल इंटरेक्शन होती है, मेजरली जिनसे आप रेगुलर बेसिस पे इंटरेक्ट करते हैं, हो सकता है आप किसी शॉपकीपर के पास आप जाते हैं, या आप कहीं से ग्रोसरीज लेते हैं अपनी, या कहीं आप वेजिटेबल्स लेने जाते हैं, जो आपका बेसिकली आपका रेगुलर इंटरेक्शन होता है। आप नोटिस करें कि आप किनसे रेगुलरली इंटरेक्ट करते हैं, तो आप उन्हें भी प्रोस्पेक्ट कर सकते हैं। सो ये कुछ की पॉइंट्स हैं जो माइक हमें शेयर कर रहे हैं, कुछ एरियाज हैं जहाँ पे हम प्रोस्पेक्ट्स कर सकते हैं। एंड आई वुड लाइक टू फोकस ऑन सोशल मीडिया मेजरली, माइक, बिकॉज when I was building my network marketing business, I used to follow social media a lot, and I used to focus on social media, and I've seen people build like so much, build a great set of network with social media. So social media is a hub where you can find everybody and anybody, and जहाँ पे Yeah. आप बहुत बहुत सारे लोगों से मुलाकात हो सकती है, और वहां से आप बहुत ज्यादा लोगों को प्रोस्पेक्ट कर सकते हैं, और फिर आप उन्हें लेटर बिजनेस में इन्वॉल्व कर सकते हैं। Yeah, I mean, the thing about social media is it's a good starting point, but my goal is to take it from online to offline right away. So, like, if I'm talking to them, we're having a conversation on social media, I want to take them to a phone call. I want to take them to something offline right away, something more intimate. Yeah. एब्सोल्युटली। सो सोशल मीडिया पे जब आपका किसी के साथ कॉन्वर्जेशन हो रही है, इंटरेक्शन हो रहा है, तो आप उसके बाद आप उन्हें ऑफलाइन फॉलो अप कर सकते हैं। जब आप उन्हें ऑफलाइन लेकर आते हैं, उनके साथ पर्सनली कनेक्ट करते हैं, तो वहाँ पे एक रैपो बिल्ड होता है, ट्रस्ट बिल्ड होता है, एक इंटीमेट कॉन्वर्जेशन जब होती है, तो आप उन्हें बेहतर समझ पाएंगे, वो आपको बेहतर समझ पाएंगे, और डेफिनेटली वो एक ट्रस्ट, एक बिलीफ बिल्ड होगा उनके और आपके बीच में, और फिर इवेंचुअली वो डेफिनेटली आपके प्रोजेक्ट को देखना चाहेंगे। हो सकता है वो आपके साथ ज्वाइन भी कर लें। सो that's what we can do. Okay, Mike, we can Right. move forward. Okay. All right. So what's the formula? Like, how does it work? Connect, compliment, question, invite. Okay. So that's kind of how I do it. So I connect with people. You can connect with people a lot of different ways. It could be something in common, right? You share something in common, or whatever the case may be. Or you can compliment somebody. You know, a compliment goes a long way as long as it's sincere, it's honest. I think it's received well. And then asking a good question like, are you open to this? Or, what do you typically do for your health? What are some ways that you look for to make extra income? How do you feel about multiple streams of income? How do you feel about making money online? How do you feel about, makes sense? It's like you can ask any question. I think the AI question is big right now. How do you feel about AI really, replacing a lot of traditional jobs? How do you feel about that? And people will say, "Oh,
I'm worried, I'm concerned. Okay, what are some of the things that you're doing to protect yourself for your future, to protect your future from being displaced per se? Those are good questions to have. It's a good prospecting way. And then you can invite them. Oh, I would love to invite you to see this. I would like to share this with you, right? You can kind of go from there. So, anyways, that's the formula. So, connecting with people, complimenting them, bringing up questions, and I'll give some examples on the next slide, and then inviting them. Yeah. ओके, सो नाउ अब हम शेयर कर रहे हैं एक प्रोस्पेक्टिंग फॉर्मूला जिसमें आप कनेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली ये फॉर्मूला है जिसमें हम पहले लोगों के साथ कनेक्ट करेंगे, फिर उन्हें कॉम्प्लीमेंट करेंगे, फिर उनसे क्वेश्चंस पुट करेंगे और फिर उन्हें इनवाइट करेंगे। अब आप कनेक्ट करते हैं, हो सकता है आप सोशल मीडिया पे कनेक्ट करें, आप वन टू वन उनके साथ पर्सनली कनेक्ट करें, आप उन्हें कॉल कर लें, आप रैंडमली किसी से कनेक्ट कर सकते हैं। ऐसे आप जहाँ पे भी लोगों के साथ कनेक्ट करें, लेटर आप उन्हें कॉम्प्लीमेंट करें, वो जो भी काम कर रहे हैं, एक जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट उन्हें दें उनके काम को लेके, उनकी ग्रोथ को लेकर के, उनके बैकग्राउंड को लेकर के, जो भी आपको लगता है कि एक अच्छा कॉम्प्लीमेंट होगा उनके लिए, आप उन्हें कॉम्प्लीमेंट करें। लेटर आप उनसे क्वेश्चंस पूछें। सो क्वेश्चंस आप क्या पूछ सकते हैं, आप उन्हें काम के बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, आप जनरल क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसके बाद उनका क्या माइंडसेट है, उनकी लाइफस्टाइल कैसी है, उनके पास कितना खाली समय होता है। आप उनसे ये पूछ सकते हैं कि करंट मार्केट के डायनामिक्स में आपको जो एआई है, फॉर एग्जांपल एक अच्छा एग्जांपल दिया माइक ने, कि एआई बहुत सारी जॉब्स को रिप्लेस कर रहा है, उसको लेके आपका क्या थॉट प्रोसेस है, आप क्या कर रहे हैं अपनी जॉब को बचाने के लिए, आप क्या मेजर्स ले रहे हैं अपनी जॉब को प्रोटेक्ट करने के लिए। और इस तरीके से फिर आप उन्हें इनवाइट करें। सो आपको जो लगता है कि उनका एक वीकनेस पॉइंट हो, आप उनसे क्वेश्चंस पुट करें और उसके बाद उन क्वेश्चंस के बेसिस पे उन्हें आप इनवाइट कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट को देखने के लिए। आगे की स्लाइड्स में हम कुछ एग्जांपल्स भी शेयर करेंगे तो आपको ज्यादा बेहतर क्लियर होगा। यस, वी कैन Okay. मूव Okay, फॉरवर्ड। so here's an example of a conversation, right? Um, you know, I I like saying this, but you got to be careful. You don't want to be flirty, if that makes sense. You want to be more so professional. Like, hey, I really love your energy. I love your attitude. I love the way you're passionate about what you're doing. Makes sense. It's like that's a compliment in a professional way versus I like your energy. That's a more of a flirty kind of way of saying something, right? So you want to be more have more posture when you're saying something like that. But energy is something that's it's not a common compliment. And energy is something that we want in our business. We want people with good energy, people that have a good vibe, right? So I've always used that whenever I go to a restaurant or I go shopping or I go to the bank or I go anywhere, right? Getting my car serviced. And I see somebody that I do think that they would do well, or I think that they're, somebody that I would like to work with. I always say, hey, you know what? I really like your energy. I do. And then they're like, oh, thank you. And I'm like, where do you get it from? You know? And then they'll tell me, well, and it opens up that conversation. It's such a good way to open up a conversation. Hey, I really like your energy, man. I really do. Thank you. Thank you for being so positive. At the coffee shop, right? Somebody gives me good service. I always say, hey, I really like your energy. I appreciate that. Why are you so energetic? And they'll say, oh, well, and people open up. It's such a good way to get people talking. And it's honest. For me, it is. It's a very sincere compliment whenever I say that to someone. Next is, what do you do? If I'm at an event or something, I don't ask it in a judgmental way, like I'm trying to judge. I ask it like in a very curious way. Like, so what do you do exactly? Like you got such a good personality, you got a good energy. What do you do? You know, Something like that, right? And if I want to take the conversation further, right, I can always ask, have you ever looked at have you ever looked at additional streams? It might not be in that first conversation. It might be in two or three conversations down the line, but it's there. It's the way that I bring it up. Have you ever looked at? I'll give you an example. I met a gal on social media, and she does a lot of like content creation, right? For different shows, like TV shows. And I asked her, I was like, hey, you're doing so great. I love your energy and I love that you're creating all this content. Have you ever considered additional income streams that complement what you're doing? And she goes, I have, but I haven't really done anything. Awesome. What are some things that you see? And it's like it kind of brings up the conversation naturally. So
I gave you some examples right there. ओके। सो एक कॉन्वर्सेशन का एग्जाम्पल माइक हमारे साथ शेयर कर रहे हैं जहाँ पे हम हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, हमें कभी भी बहुत जेन्युइन साउंड करना है, हमें बिल्कुल भी फ्लर्टी साउंड नहीं करना है, सामने वाले को अनकंफर्टेबल महसूस नहीं कराना है जब भी आप किसी से कनेक्ट करते हैं तो। सो आप कनेक्ट करने के बाद डायरेक्टली आप सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेट्स से आप किसी कॉफी शॉप में गए, आप कहीं मॉल गए हैं शॉपिंग करने, या आप किसी से भी इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो आप उन्हें इस तरीके से एक अपने जो कॉन्वर्जेशन का आइस ब्रेक कर सकते हैं बेसिकली। आप उन्हें बोल सकते हैं कि मुझे आपकी एनर्जी बहुत अच्छी लग रही है, आपकी वाइब बहुत अच्छी है, आप बहुत एनर्जेटिक है, आपसे बात करके अच्छा लगा, आपका ऑरा बहुत पॉजिटिव है, ठीक है, आप बहुत पॉजिटिव साउंड कर रहे हो, आपकी स्माइल बहुत अच्छी है, आप बहुत पॉजिटिव है। इस तरीके के आप कॉम्प्लीमेंट उन्हें कर सकते हैं। नेक्स्ट, कॉम्प्लीमेंट करने के बाद आप उनसे लाइक क्यूरियस होकर के, ठीक है, जजमेंटल होके नहीं, क्यूरियस होकर के आप उन्हें पूछ सकते हैं कि आप क्या करते हैं बाय द वे, ठीक है। सो एक अगेन आपको ध्यान रखना है कि आपका जो बोलने का तरीका होगा वो बिल्कुल जजमेंटल नहीं होना चाहिए, वो क्यूरियस होना चाहिए कि आप क्यूरियसिटी के साथ उनसे पूछ रहे हैं, आप बिल्कुल ऐसे जानना चाहते हैं उनके बारे में, आप इंटरेस्टेड हैं उनमें, उनके बारे में जानना चाहते हैं, और फिर आप उनसे पूछ रहे हैं कि आप क्या करते हैं, ठीक है, व्हाट डू यू डू। उसके बाद आप उन्हें जो भी वो अपना ओपन अप होकर के वो आपको बताएंगे कि मैं ये करता हूँ, ये करती हूँ, जो भी। जैसे माइक ने अपना एग्जांपल दिया कि उन्होंने सोशल मीडिया पे एक लेडी के साथ कनेक्ट किया था, वो कंटेंट क्रिएशन है, वो अलग अलग शोज के लिए कंटेंट क्रिएट करती है। तो उनसे एक अच्छी इंटरेक्शन होने के बाद माइक ने उनसे ये क्वेश्चन पूछा कि क्या आपने दूसरी इनकम स्ट्रीम्स को देखा है, हैव यू एवर लुक्ड एट एडिशनल इनकम स्ट्रीम्स, आपने इसके साथ एडिशनल इनकम स्ट्रीम्स को देखा है, एक्सप्लोर किया है। तो उसने ओपन अप होकर के बताया कि मैंने देखा तो है पर मैंने कुछ किया नहीं है। इस तरीके से आप भी ये क्वेश्चन लेकर आ सकते हैं जब भी आप किसी से इंटरेक्ट करें, आप पहले कॉम्प्लीमेंट करें, आपकी एनर्जी अच्छी है, आपका और अच्छा है, आपकी पॉजिटिविटी, आपकी स्माइल बहुत पॉजिटिव है, आप बहुत पॉजिटिव हो, आपसे एक पॉजिटिव वाइब्रेशन आ रही है, या आप उन्हें ये बोल सकते हैं कि आप बहुत एनर्जेटिक है और मुझे बहुत अच्छा लगा आपकी एनर्जी महसूस करके। फिर आप उनसे क्यूरियोसिटी के साथ पूछ सकते हैं कि अरे आप करते क्या है एग्जैक्टली, तो आप उनसे पूछे कि आप क्या कर रहे हैं, तो वो आपको ओपन अप होकर के जरूर बताएंगे कि मैं ये करता हूँ। फिर लेटर आप उनसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपने कोई एडिशनल इनकम स्ट्रीम्स को एक्सप्लोर किया है या आपने कभी देखा है। इस तरीके से आप इस कॉन्वर्सेशन को बिल्ड कर सकते हैं, और जब वो बोलते हैं हाँ मैंने देखा है या कुछ किया होगा, तो वो आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। अगर उन्होंने कुछ नहीं किया होगा तो आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप उनसे पूछें कि क्या आप इसे देखना चाहेंगे, और आप अपनी अपॉर्चुनिटी को पिच कर सकते हैं। या Okay, excellent. Hopefully those some of those ice-breaking questions helped a little bit. But this is and it connects into this, right? In social media prospecting, post lifestyle, results, things that you're doing, right? Use stories daily. I love doing stories because it'll kind of just trigger some questions. You'll see me posting more on social media in the next coming months, just because I'm settling in and I'm getting my home and I'm doing all this stuff. So it'll be like very, very good to like how I'm setting up my home, my healthy home, and I'll be doing a whole like series on that. Also, just traveling, like I'm not going to travel as much. And then the reason why is just because, I'm getting older. Like I need to get married and have a family and, these things. So I want to land. I want to chill and just kind of build my retirement at this point. Um, Build relationships first. Remember that. You can't expect people to want to do some business with you. Just build a relationship. Don't worry about the business. Just build a relationship. And then reply to engagement. You'll have engagement, comments, people liking something. If they like it, send them a message. Hey, thanks for liking my post. I'm really excited about this right now. So, what about you? What do you got going on right now? What's something you're excited about? You see, that's simple, right? It's a way to kind of build that engagement. एब्सोल्युटली। सोशल मीडिया पे हम कैसे प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं ऑन दैट। सबसे पहले आप अपने पोस्ट और लाइफस्टाइल और अपने रिजल्ट्स को शेयर कर सकते हैं अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल के ऊपर। आप अपना सोशल मीडिया सीरियसली बिल्ड करना स्टार्ट करें, और वहाँ पे अपनी डेली एक्टिविटीज को, अपने लाइफस्टाइल को पोस्ट करें, जो भी रिजल्ट्स आपने एक्सपीरियंस किया है या देखा है, आप उन्हें शेयर कर सकते हैं। आप अपनी स्टोरीज को डेली यूज कर सकते हैं, स्टोरीज पे आप एक्टिव रहें, स्टोरीज पे आप क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। आपको जो भी लगता है कि आपके ऑडियंस किस चीज में इंटरेस्टेड, अगर आप जानना चाहते हैं तो उसके ऊपर आप क्वेश्चंस पुट कर सकते हैं। जो भी आप एवरीडे एक्टिविटी को सोशल अपनी स्टोरीज पर पुट कर सकते हैं, इससे अगेन एक रैपो बिल्ड होता है, एक ट्रस्ट बिल्ड होता है।
देन थर्ड पॉइंट इज रिलेशनशिप्स बिल्ड करें पहले, बिजनेस बाद में बिल्ड होगा, पहले रिलेशनशिप बिल्ड होगी। तो पहला फोकस ही हमें इस पे करना है कि हम लोगों के साथ एक अच्छे टर्म्स बिल्ड करें, अच्छे रिलेशंस बिल्ड करें। और जब आपके रिलेशंस अच्छे होंगे तो लोग डेफिनेटली सुनना चाहेंगे कि आप उन्हें क्या बता रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप, और आप उन्हें क्या समझाना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं, वो जरूर सुनेंगे और आपकी बातों को जरूर अंडरस्टैंड करेंगे। एंड एट लास्ट एंगेजमेंट के ऊपर अप्लाई करें। अगर किसी ने आपके पोस्ट को लाइक किया, आपकी स्टोरीज को कमेंट किया, हार्ट किया, या आपके पोस्ट पे कमेंट कर रहे हैं, तो आप उन्हें एक मैसेज भेज सकते हैं। जैसे आपने किसी किसी ने आपके पोस्ट को लाइक किया, तो आप उन्हें एक मैसेज भेज सकते हैं, थैंक्स फॉर लाइकिंग माई पोस्ट, मेरा पोस्ट लाइक करने के लिए थैंक यू। और फिर आप उनसे एक कॉन्वर्जेशन स्टार्ट कर सकते हैं। एक अच्छा आइस ब्रेकिंग हो सकता है जब आप अपने एंगेजमेंट्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं तो। और ऐसा भी होगा ऑफ कोर्स कि बहुत सारे लोगों का हो सकता है आपको रिस्पॉन्स ना आए, बट उसमें से आपको जेन्युइन कॉन्वर्जेशन बिल्ड कर सकते हैं। और लेटर आप उनके साथ एक रिलेशन बिल्ड करके, अगेन वो प्रोस्पेक्टिंग फॉर्मूला यूज करके उन्हें प्रोस्पेक्ट बना सकते हैं, उनके साथ प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं। सो ये था सोशल मीडिया प्रोस्पेक्टिंग। यस मैम। Yeah, yeah. Okay. Next is transitioning into the business, right? Because you can't just be friends and make a bunch of friends. I mean, it's nice. You get good. Like I spent a lot of time in Georgia over the last couple of months, and I've made a lot of friends. Okay. But asking the curiosity questions, keep it simple and don't overload information. You don't need to give them all the information right then, right there. Okay. So ask curiosity questions like, what are some things that you have going on in your life? What are some things that you do for your health? What are some things that you're doing to generate more income? Those are questions. Those are curiosity questions, right? Keep it simple. No need to be too complicated. And then the next is, like I said, don't overload on information. Like overloading on information is sometimes we want to tell them everything on the first go. There's no need for that. Just keep it simple. Give them, hey, this is a way to generate residual income. This is a way to make money online. This is a way to make money from home. This is something that AI will not replace right away. This is something, makes sense? Like that's giving information, but I'm not overloading. So, एब्सोल्युटली। सो अब हमने फ्रेंड्स बना लिए, मान लीजिए आपने कुछ रिलेशंस बिल्ड करे, जैसे माइक ने अपना एग्जांपल दिया जब वो जॉर्जिया में, तो उन्होंने बहुत सारे दोस्त बनाए वहां पे। और फिर अगर आपके कुछ फ्रेंड्स बनते हैं, जैसे आप नए लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, आप उनके साथ एक फ्रेंडशिप बिल्ड करते हैं, एक हेल्दी फ्रेंडशिप बिल्ड करते हैं, लेटर आप उन्हें बिजनेस के बारे में बता सकते हैं। अब बिजनेस के बारे में बताना कैसे है एग्जैक्टली उनको ट्रांजिशन कैसे करना है, उसके ऊपर हम ये पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। आपको जो लगता है कि उनको जो क्यूरियस कर सकता है, नाउ दैट यू नो देम, आप आपकी उनके साथ एक फ्रेंडशिप है, एक रिलेशनशिप सॉर्ट ऑफ बिल्ड हुआ है, तो अब आप उनसे कुछ हेल्दी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं जो क्यूरियोसिटी बिल्ड करेगा, और इवेंचुअली अपने बिजनेस के बारे में उन्हें पिच कर सकते हैं। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कीप इट सिंपल। आप बहुत सिंपल तरीके से सामने वाले को काम के बारे में समझाए, अपॉर्चुनिटी के बारे में समझाए, और बहुत सिंपल क्वेश्चंस पुट करें, बहुत सिंपल तरीके से उन्हें अपॉर्चुनिटी एक्सप्लेन करें, ताकि उन्हें समझ आए। और क्योंकि इवेंचुअली अगर आपकी अपॉर्चुनिटी सिंपल लगेगी तो वो डुप्लीकेबल भी रहेगी। सो ये भी एक की पॉइंट है। एंड एट लास्ट, उन्हें ओवरलोड ना करें इन्फॉर्मेशन से। अगर सामने वाला इंटरेस्टेड है तो वेल एंड गुड, बट फर्स्ट टाइम में या सेकेंड टाइम में बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन हमें उन्हें प्रोवाइड नहीं करनी है, हमें उन्हें जस्ट देना है, ताकि उन्हें क्लियरली समझ आए एग्जैक्टली आप किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम पहले दिन ही उन्हें सब कुछ बता रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट डे आपको भी याद होगा आपको सब कुछ नहीं बताया गया था, और शायद बताया गया होता तो आप उस मीटिंग में नहीं बैठे होते। राइट। सो इसलिए हमें ओवरलोड नहीं करना है इन्फॉर्मेशन से, हमें बहुत सिंपल रखना है, बहुत सिंपल तरीके से क्वेश्चंस पूछने हैं, और इवेंचुअली उन्हें अपने बिजनेस में ट्रांजिशन करना है। Yeah. okay, thank you. Let's go ahead and move on. All right, so use tools. Okay, like what are you using during your prospecting? You could use different things. Like you could share a video, right? If it's about the product, if it's about maybe the business, you could share a quick video. I do like using the affiliate video. It's short and it's sweet. That's something we use in the States. There's different videos that you guys have out there in India. Inviting somebody to a Zoom, I think that's good. House meetings, we talked about that a lot when I was in India, really using house meetings. Even testimonials, sharing somebody's testimonial.
connecting them with somebody's testimonial on social media. If you want to use me, for example, please feel free. You can say like, hey, through this business, you can, generate income from home. You can generate income from your phone. So you can travel. I mean, here's a person that I met. They were here in India and that you see, share my social media profile. They can look, I have things posted about USANA in my page, right? Or a three-way call. A three-way call or a three-way text is good too to connect people and get the conversation going in the right direction. So use any of those tools. अच्छा। सो अब हम कुछ टूल्स है जो हम यूज कर सकते हैं जब हम ट्रांजिशनिंग कर रहे हैं अपने फ्रेंड्स की बिजनेस में। तो हम ये कुछ बोल सकते हैं, प्रूफ हम उन्हें दे सकते हैं या उनको बोल सकते हैं कुछ ऐसे टूल्स जो उनके ट्रस्ट को बिल्ड करने में मदद कर सकते हैं। हम कुछ वीडियोस शेयर कर सकते हैं उनके साथ, जैसे माइक ने एफिलिएट वाला वीडियो बोला। आप हमारे इंडिया में जो वीडियोस है, जैसे बी आर युसाना वाला वीडियो हो गया, या हमारे जो हमारी ट्रिप्स हुई हैं उसके वीडियोस हो गए, हमारे जयपुर वाली ट्रिप का वीडियो या केरला वाली ट्रिप का वीडियो, जो आप चाहें आप वो दिखा सकते हैं। जूम मीटिंग्स कर सकते हैं उनके साथ, या हमारी कंपनी की जो जूम मीटिंग्स ऑलरेडी होती हैं एवरीडे, आपको पता है 11 बजे सुबह मीटिंग होती है। सो आप वो मीटिंग्स में लोगों को बुला सकते हैं, इनवाइट कर सकते हैं, उन्हें एक एक्सपोजर दे सकते हैं अपॉर्चुनिटी का, अब प्रोडक्ट्स का। तीसरा, हाउस मीटिंग्स। जब माइकल यहाँ इंडिया में थे तब भी हमने हाउस मीटिंग्स के ऊपर बहुत एम्फेसिस किया था और हाउस मीटिंग्स की भी है। और आई आई नो आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने हाउस मीटिंग्स के ऊपर सीरियसली काम किया भी है और कर रहे हैं। सो हाउस मीटिंग्स बहुत अच्छा तरीका है, बहुत अच्छा टूल है जिससे आप अपने बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं, ग्रोथ पे लेकर आ सकते हैं। टेस्टिमोनियल शेयर कर सकते हैं, आपको कुछ रिजल्ट्स मिले, आपके कस्टमर्स को रिजल्ट्स मिले, आपके डाउनलाइंस को रिजल्ट्स मिले, आपके इवन इनफैक्ट आपके क्रॉस लाइंस को भी अगर किसी प्रोडक्ट के या किसी अपॉर्चुनिटी का रिजल्ट मिला है, तो आप वो टेस्टिमोनियल, वो स्टोरी आप शेयर कर सकते हैं। आप चाहे तो आप माइकल के बारे में शेयर कर सकते हैं। आप जिनके बारे में चाहें, जो आपको लगता है एक अच्छा टेस्टिमोनियल होगा, आप उसके बारे में लोगों को बता सकते हैं। और ये आप अगेन आपको एक्सपोजर बिल्ड करने में मदद करेगा। एंड एट लास्ट, थ्री वे कॉल्स। माइक, कैन यू रिपीट दिस पॉइंट, थ्री वे कॉल्स? Yeah, three-way calls. I like doing three-way calls where it's just like, hey, look, I really want you to meet someone. His name is Bob. Solid individual, has a lot of great ideas. Just doing maybe a quick three-way call. Or I'd love to connect you with Bob on Instagram or TikTok. Just want to share his profile with you, put a little conversation, just open up the conversation between the two of you guys. Use your upline. Like use the upline like that. Yeah. So you're prospecting, but you're taking them from, hey, I'm just a friend to let me introduce you to an expert. So Here in India, we say that third party interaction. We use third this party, term for yes. three-way Yes. call. Third So, party yeah, थर्ड interaction. पार्टी इंट्रैक्शन आप कर सकते हैं। आप अपने अपलाइन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, अपने डाउनलाइन को एक्सपोजर देने के लिए। आप किसी का इंस्टाग्राम प्रोफाइल दे सकते हैं, सोशल मीडिया प्रोफाइल दे सकते हैं। आप उन्हें थर्ड कॉन्फ्रेंस कॉल पे आप कनेक्ट कर सकते हैं। और जो भी आपको लगता है कि आपके प्रोस्पेक्ट के लिए ये एक अच्छा वो हो सकता है, एक एक्सपोजर हो सकता है, आप उन्हें वो एक्सपोजर थर्ड पार्टी के थ्रू दे सकते हैं। थ्री वे कॉल्स बेसिकली वही पॉइंट होगा, थर्ड पार्टी। सो ये कुछ टूल्स हैं जिन्हें हम यूटिलाइज कर सकते हैं जब हम अपने प्रोस्पेक्ट की ट्रांजिशनिंग कर रहे हैं बिजनेस के अंदर। Yeah. Okay. All right. And we're coming to an end here soon. So the numbers game. Okay. You gotta keep this as a numbers game. There's no way you can be perfect at this. 10 conversations every day, every week, up to you. 5 follow-ups every day, every week, up to you. 2 invites every day, every week, up to you. 1 presentation every day, every week, up to you. So you got to understand that this is going to be directly proportional to your results. If you do it more frequently, you're going to get results more frequently. Like going to the gym once a week, going to the gym once a month, going to the gym once a day. You're going to get results are different. Make sense? So keep this in mind. It's really just a numbers game, and just practice. But it starts with conversations. You notice it doesn't say 1 presentation a day. No, no, it says 10 conversations. You have to talk to 10 people, and that's how you're going to get the 5 follow-ups, the 2 invites, and then the presentation. Absolutely. So at last, again, this is a numbers game. ये बहुत important point है. And Mike, I guess people who are into this industry and who are basically a leader here in India, even in this industry entirely, they must have read this book called as Question Are the Answers.
So I've read it, and I know it talks about the numbers game. So there's this, they tells a story about a guy who is a salesperson basically, who knocks on 10 doors and gets one sale. So I remember that story very clearly, and I used to teach my team as well. So that is what we are focusing on. And जो कोई भी इस इंडस्ट्री में है, अगर आप इस इंडस्ट्री में कुछ टाइम से हैं तो आपको पता है ये नंबर्स गेम है, ये बिजनेस ही नंबर्स गेम है। और हमें अपनी फोकस ही हमें अपने नंबर्स के ऊपर करना है। हम बात यहाँ पे प्रेजेंटेशंस की नहीं कर रहे हैं, हम बात यहाँ पे कॉन्वर्सेशन की कर रहे हैं। आपको पहले फोकस करना है कि आप दिन में 10 कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, मतलब आप दिन में 10 लोगों से बात कर रहे हैं। प्रेजेंटेशन की बात नहीं हो रही है, कॉन्वर्सेशन की बात हो रही है। सो हम अगर एक दिन में 10 लोगों से बात कर रहे हैं तो हमें 5 फॉलोअप मिल सकते हैं एक दिन में। और 5 फॉलोअप के बाद 2 इनवाइट्स हो सकते हैं एक दिन में, और एक प्रेजेंटेशन होना स्टार्ट होगी एक दिन में। सो आप देखेंगे, जैसे एग्जांपल माइक ने दिया जिम का, अगर आप महीने में एक बार जिम जाते हैं और साल में एक बार जिम जाते हैं और दिन में एक बार जिम जाते हैं, तो उसमें आपको तीनों में डिफरेंस दिखेगा। अगर आप साल में एक बार जिम जाएंगे तो आपको कुछ भी रिजल्ट नहीं दिखेगा। महीने में एक बार जिम जाने से कुछ महीनों बाद शायद कुछ रिजल्ट दिखे, बट अगेन जब आप दिन में एक बार जिम जाते हैं और आप मंथली बेसिस पे एवरीडे जिम जा रहे हैं, एवरीडे आप शो अप कर रहे हैं, तो आपको आपके बॉडी में, आपके हेल्थ में एक डिफरेंस फील होगा। सो ये सेम चीज हम इसमें भी फोकस कर रहे हैं। हम यहाँ पे कॉन्वर्जेशन की बात करें तो अगर आप रोज 10 लोगों से बात करना स्टार्ट करेंगे, दिन के 5 फॉलोअप्स होंगे, 2 इनवाइट्स होंगे और एक प्रेजेंटेशन होना स्टार्ट होगी, और इस तरीके से आप आप एक कंसिस्टेंसी के साथ अपने बिजनेस को बिल्ड कर पाएंगे। Okay. Let's keep it going. So the fortune is in the follow-up. Day Absolutely. one, day three, day seven, right? Stay positive, stay professional. So following up. So what I mean by day one, day three, day seven is if you meet someone today, 3 days later, just check in. Hey, it was really nice meeting you the other day. Just wanted to say hi, da da da, whatever, right? Day seven, hey, you know what? We're going to be going on a hike this weekend. Not sure if you're interested in coming, but please feel free to join me and some friends. We're going to go. It's kind of like you want to keep following up. Make sense? Have a strategy for engaging with people constantly, but stay professional. That's key. Stay professional, stay positive. None of this flirty, wordy stuff. Like it doesn't work like that. You have to be professional. So, ओके। सो एट लास्ट फॉलो अप, हमारा जो फॉर्चून है वो फॉलो अप में होता है। आई एम श्योर यू मस्ट हैव हर्ड दिस लाइन अ लॉट ऑफ टाइम्स, बिकॉज इट्स ट्रू। इट इज व्हाट इज वर्किंग, जो है वो काम करता है, वो यही है। तो आपका जो फॉर्चून है वो आपके फॉलो अप में ही रहेगा। फॉलो अप आप कब कर सकते हैं? आप डे 1, डे 3 और डे 7 पे फॉलो अप कर सकते हैं। आपने किसी से इंटरेक्ट किया, कोई आपका प्रोस्पेक्ट है, किसी से आपने कनेक्ट किया, आप उन्हें डे 1 पे तो रीच आउट करें। डे 3 पे आप उन्हें फिर से रीच आउट कर सकते हैं। आई जस्ट चेकिंग ऑन यू, आपके ऊपर आप कैसे हैं, क्या हाल चाल, कैसा चल रहा है, आप जनरली उनसे बात कर सकते हैं। डे 7 पे आप उन्हें फिर से चेक इन कर सकते हैं, आप उन्हें कॉफी पे बुला सकते हैं, चाय पे बुला सकते हैं, ऐसे रैंडमली आउटिंग पे बुला सकते हैं। सो इस तरीके से आप उन्हें एक एक्सपोजर दे सकते हैं, उनके साथ एक इंटरेक्शन जो रहेगा वो आप एक कंसिस्टेंट इंटरेक्शन उनके साथ रखें। एंड एट लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि हमें प्रोफेशनल रखना है और पॉजिटिव रहना है। प्रोफेशनल होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम उनके साथ फ्लर्टी तरीके से अच्छे इंटेंशंस के साथ बात नहीं करेंगे तो डेफिनेटली वो हमारे बिजनेस को ज्वाइन नहीं करेंगे, और ना ही हमें कुछ ग्रोथ मिलेगी उससे। सो हमें अपने बिजनेस को बिल्ड करना है तो हमें बहुत प्रोफेशनली और बहुत पॉजिटिव तरीके से अपने बिजनेस को बिल्ड करना होगा। या so the objections you'll have is I'm not interested, I don't have time, is this a pyramid? Those types of questions. Remember, I feel like if you have this question during the prospecting, you said too much. The key is just to connect. Makes sense? You shouldn't be dealing with objections because you haven't presented anything. All you did was prospect and connect. So anytime you get an objection, that means you were selling something already. That's what I'm saying. You shouldn't be getting objections. It should just be connecting. That's all. ओके ओके। सो एट लास्ट, हैंडलिंग ऑब्जेक्शंस, अगर आपके पास आपके प्रोस्पेक्टिंग में अगर आपके पास ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं तो वो गलत साइन है, मतलब आपने बहुत ज्यादा बता दिया है और आप ऑलरेडी एक सेल्समैन की तरह बेच रहे हैं शायद उन्हें कुछ। सो अगर उन्हें ये महसूस होगा तो ये ऑब्जेक्शंस आपके पास आ सकते हैं कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, या ये पिरामिड स्कीम है। तो वो बोल सकते हैं आपको ये चीज। तो अगर ये ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं, मतलब आपको ध्यान देना है कि आपने शायद बहुत ज्यादा ओवर शेयर कर दिया है और आपको आपके अगले प्रोस्पेक्ट के साथ ये नहीं करना है।
सो ये चीज़ों का ध्यान रखना है, हमें ऑब्जेक्शंस नहीं आने चाहिए, क्योंकि हमारा गोल था कनेक्ट करना, रिलेशन बिल्ड करना, हमारा गोल नहीं था प्रेजेंटेशन करना। सो हमें, जब हम प्रेजेंटेशन करेंगे तब हमें ऑब्जेक्शन आएंगे। कॉन्वर्जेशन जब आप कर रहे हैं तब आपको ये ऑब्जेक्शन नहीं आनी चाहिए। Yeah. Okay. All right. So, leader habits, daily activity, strong posture, consistency, and always inviting. I think that's top leader habits. Like if you have this, you're moving forward in your business. Your business is going to grow for sure. If you don't have these daily habits, well, then it's maybe, right? ट्रू, ट्रू। सो ये कुछ टॉप लीडर के हैबिट्स हैं। डेली एक्टिविटी आपकी होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग पोस्चर होना चाहिए, कंसिस्टेंसी के साथ आपको काम करना है, और आप हमेशा इनवाइट करते हैं। आप जो भी टॉप लीडर्स को जिनको आप इंस्पायर करते हैं, आप देखिए क्या वो ये चार चीजें फॉलो करते हैं या उनके पास ये चार चीजें हैं। अगर वो ये चार चीजें करते हैं तो आपको पता है आपको किन को फॉलो करना है, आप किन को देख रहे हैं। सो आपको भी अगर एक टॉप लीडर बनना है, एक अच्छा लीडर बनना है और अच्छे तरीके से अपने बिजनेस को बिल्ड करना है, तो आपको इन चार चीजों के ऊपर फोकस करना होगा। क्योंकि हर अच्छा लीडर जो इस इंडस्ट्री में ग्रो कर रहा है वो इन चार चीजों के ऊपर काम करता है। उनकी डेली एक्टिविटी होती है, पोर्शन उनका बहुत स्ट्रांग होता है, कंसिस्टेंसी के साथ वो काम करते हैं और हमेशा इनवाइटिंग करते हैं। सो ये चीजों पे हमें काम करना जरूरी है। Okay. And then here's a 7 day challenge. Look, if you want to kind of, motivate yourself or push you or push your team, try this. Sometimes it's like the 5 day reset, like the cleanse. You have to have a short burst to maybe build a habit, like people that are giving up a bad habit. Let's say even smoking. Smoking is a terrible habit, but they say, I just want to quit 7 days. Okay, good. And then once you do 7 days, you're like, you know what? I could do another 7 days. Okay, you know what? I don't have to go back to that. So you're trying to find a rhythm. You're trying to find, or going to the gym. I'm going to go to the gym 7 days. And then, okay, I can do 7 more days. Okay, you know what? I could do this. It's like you have to find a way to pump yourself up. So maybe here's a little suggestion, maybe 10 conversations a day. And maybe that's the goal for the next 7 days. 5 invites daily, posting every day and tracking the results. Go with that, try that out and see how well you do. Change the numbers. Maybe it's not 10 conversations. Maybe it's five. Maybe instead of 5 invites, maybe it's one. Change it up, whatever works best for you. Or maybe you're not even doing invites. Maybe you're just prospecting. Okay, fine. 10 conversations a day. Post every day, track the results, see where you're at. ओके। सो ये 7 डे चैलेंज है। आई फील लाइक दिस इज द चैलेंज यू आर गिविंग टू ऑल आवर ब्रांड पार्टनर्स। They have to, you should actually, you should provide us some homework to work on. I usually call that as homework. So how about we give homework to all the brand partners over here? So जो भी ब्रांड पार्टनर्स हमारे साथ कनेक्टेड है, आप इसे एक होमवर्क की तरह ले लीजिए, कि आप, या एक चैलेंज की तरह ले लीजिए कि 7 डे का ये चैलेंज है जिसके ऊपर आप काम करेंगे। आप अपने आप को ये चैलेंज दीजिए कि आप डेली 10 कॉन्वर्जेशन करेंगे, जिसमें से 5 इनवाइट्स होंगे। अगर 5 इनवाइट नहीं भी होते हैं तो एटलीस्ट आपके 2 इनवाइट्स होंगे, ठीक है। और उसके साथ साथ आपको हर रोज पोस्ट करना है सोशल मीडिया पे और ऊपर, और फिर आपको अपने रिजल्ट्स को ट्रैक करना है। सो इसके ऊपर आप डेली बेसिस पे काम करें। आपको कोशिश ये करनी है कि आपके दिन की 10 कॉन्वर्जेशन हो सकता है पहले दिन पे 10 कॉन्वर्जेशन नहीं होगी, 5 होंगी, 4 होंगी, 2 होंगी, डजेंट मैटर। बट धीरे धीरे आपको बिल्ड करना है कि आपके दिन की 10 कॉन्वर्जेशन होनी स्टार्ट हो। जब आपके दिन की 10 कॉन्वर्जेशन होगी तो जरूर 5 इनवाइट्स भी होंगे डेली बेसिस पे। आपके प्रेजेंटेशंस भी होना स्टार्ट हो जाएंगे और उसे आप रेगुलरली पोस्ट कर सकते हैं अपने सोशल मीडिया पे, एवरीडे बेसिस पे पोस्ट करें और फिर अपने रिजल्ट्स को ट्रैक करें। जब आप ये चीज़ें करेंगे तो हम श्योर आपको ज़रूर रिजल्ट्स मिलेंगे, और जब आपको रिजल्ट मिलेंगे आपकी टीम उस चीज़ को देखेगी, नोटिस करेगी और वो भी डुप्लीकेट करना स्टार्ट करेगी। देयर इज अ सेइंग दैट what we share on social media. Mike, what exactly do we share on social media? As I mentioned, it could be just your daily. Let me go back to that one real quick. Hold on. Yeah. So, like, what do you post, right? So, post lifestyle Yeah. results. You know, it doesn't have to be your own results. It could be somebody else's. I like to share like, hey, my friend just did this. That's amazing. My friend lost this much weight. My friend just participated in a marathon. You can share other people's, but it's lifestyle and results. You know, my friend just bought their house. Like so when I post my story, share it. My friend just bought their house. I mean, that's a big deal, right? So something like that. Yeah.
संदीप जी, आपका जो ये क्वेश्चन था कि हम क्या पोस्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, तो आप फर्स्टली आप डिसाइड करें आप एग्जैक्टली exactly क्या शेयर करना चाहते हैं। क्या आप प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं या आप डायरेक्टली अपॉर्चुनिटी को प्रमोट कर रहे हैं? आप किसके इर्द गिर्द अपनी सोशल मीडिया को बेसिकली ब्रांडिंग करना चाहते हैं? और आप चाहे तो आप उन्हें क्लब भी कर सकते हैं, आप वेलनेस के ऊपर बात कर सकते हैं, आप अपॉर्चुनिटी के ऊपर भी बात कर सकते हैं। तो आप इन टॉपिक्स के ऊपर पोस्टिंग कर सकते हैं। अगर आपको आपके टीम में किसी को रिजल्ट्स मिला है, हेल्थ के साथ उन्हें कुछ रिस्पॉन्स मिला है, वेट मैनेजमेंट का कुछ रिजल्ट्स मिला है, तो आप वो शेयर कर सकते हैं। लाइफस्टाइल आप शेयर कर सकते हैं कि आपको पता है कि किसी ने इस अपॉर्चुनिटी से घर लिया है, कार लिया है, जो भी आपको लगता है कि एक रियलिस्टिक डेडलाइन में रह के Yeah. उन्होंने कुछ अचीवमेंट करी है, तो वो आप शेयर कर सकते हैं। So, Yeah. yes, this is a 7 day Okay. challenge, and I believe all our brand partners are ready to accept. So, जो भी Okay. लोग जो भी रेडी है इस 7 डे चैलेंज को लेने के लिए, आप जल्दी से चैट बॉक्स में यस टाइप करो, ताकि हमें पता चले कि आप इस 7 डे चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहे हैं और आप इसके ऊपर काम करने वाले हैं। इज इट अ यस? यस। Yes, there are people who are typing yes in the chat box. So they are taking this 7 day challenge and they'll surely work on it. Awesome. Excellent. Wonderful. Excellent. Okay, we'll end it on this, guys. It was really nice seeing y'all. We'll talk again. But closing. This is my closing statement, okay? Yeah. Your future business is hiding inside the conversations you haven't started yet. I love that because a lot of times, we think, oh, we're so far away from succeeding. You're one person away, one conversation away from changing your life forever. It literally comes down to that. For me, it was literally one conversation and it changed everything. One conversation changed everything. So it's pretty cool. You just have to be consistent with that. Okay. Well, wish you guys the best of luck. God bless Thank you you. guys Thank you so and much. enjoy the rest of your evening. Thank you so much, Mike. Looking forward to see you again. Thanks a All lot. right. Cheers, guys. Take care.